नमस्कार, INI न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। रजरप्पा मंदिर में CRPF जवान ने अपना गला रेत कर दे दी बलि। रोहतास जिले में मानवता को किया शर्मसार, मजदूरी मांगने से गर्म सलाखों से दागा। सासाराम में तिलक समारोह में हवाई फायरिंग के दौरान एक नर्तकी की मौत। जशपुर जिले में अपने भाई के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई की पत्नी और बहन के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास। अब खबरें विस्तार से। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सत्रों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। यह सरकार गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए काम कर रही है। नोटबंदी से सरकार ने काले धन के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ी और बैंकिंग से भी जनता को जोड़ने की कोशिश की। 14 different sectors have been identified under the Wan Bandhu Kalyan Yojana for the employment of tribals. 100 out of 300 districts envisaged under the Shama Prasad Mukherjee Urban Mission will be developed in tribal areas. The success of Indian cricket team at the World Cup for the Blind 2014 and the Indian Paralympics contingent at Rio 2016 demonstrate that Divyangjan can scale great heights if afforded an opportunity. My government is committed providing the Divyangjan equal opportunities for development. Besides increasing the percentage of reservations for Divyangjan from 3 to 4% in the government jobs, my government has accelerated filling up of backlog vacancies. Over 6 lakhs Divyangjan have so far benefited from 47,000 special assistance camps organized across the country since May 2014. Honorable members, the Sugammo Bharat Abhiyan is improving accessibility of the Divyangjan at public places. For the first time, speech and language disability and specific learning disability have been included in the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. A common sign language is being developed for the entire country. The Nirama Swasth Bima Yojana provided Divyangjan effectively affected by autism, cerebral palsy, mental retardation, and those with multiple disabilities a health insurance cover of up to 1 lakh rupees. Like the strings of sitar, which produces different notes, but come together to create a beautiful melody. People professing of different faiths and religion constitute the spirit of India and contribute to the strength of the nation. The courage and sacrifice of Baba Bande Singh Bahadur, whose 300th martyrdom anniversary, spirit of fear and the spirit of selfless service of Mother Teresa, who was canonized recently, inspire us in equal measures. My government has taken several measures to ensure that the aspirations of the people from all communities are fulfilled
and a more focused approach has been taken towards inclusive development of the notified minority community, namely Muslims, Christians, Buddhists, Sikhs, Parsis and Jains. While scholarship and fellowship schemes have encouraged their educational employment, skill development schemes like Shekho or Kamau, Ustad and Naimanjil have enabled their economic empowerment. Honorable members, just as all the drops of rainwater and streams converging in one ocean, all the policies of my government converge for the welfare of the poor, deprived and the underprivileged. From giving house to the shelterless, to electrifying unelectrified village, from giving free LPG connection to supplying LED bulbs to the poor, from Jan Dhan to Jan Suraksha, from making available, affordable health care to providing quality education to the poor, central to all the policies of my government is the welfare of the poor. Balanced and equitable developments of all regions vital to India's progress. Under its proactive, activist policy, my government is focusing on reducing the isolation of the eastern region and northeast by improving connectivity through road, rail, telecom, power and waterways. Honorable members, my government has started Pradhan Mantri Urja Ganga with the execution of 2,500 kilometers long Jagdishpur, Haldia, Bokaro, Dhamra National Gas Pipeline Project, with an investment of around rupees 12,000 crore, 12,500 crores. This project will cater to energy requirements of 5 states, covering 40 districts, 2,600 villages. The project will also lead to the revival of 3 large fertilizer plants, industrialization of more than 20 cities, and the city gas network development in 7 cities. My government sees the northeastern states as the Ashtalakshmi, that they can take India to new heights. The northeast is the gateway to Southeast Asia. We are opening up road and rail route to our neighboring countries to boost the economic development of the region. To ensure unhindered support and development of northeastern states, my government is continuing with the special dispensation that the assistance pattern of the northeastern states and is providing assistance in the ratio of 90-10 for core central schemes and 80-20 to non-core central schemes of these states. Honorable members, by the end of the year, all meter gauge tracks in the northeastern states will be converted into broad gauge.
रामगढ़ स्थित रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिके मंदिर परिसर में एक अजीबोगरीब आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिससे सनसनी फैल गई है। हजारीबाग में तैनात बिहार के बक्सर के बलिहार गांव के एक सीआरपीएफ जवान ने, जिसका नाम संतोष नट बताया जा रहा है, उसने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपने साथ लाए गए धारदार हथियार से अपना गला काटकर अपनी बलि चढ़ा दी। मृतक संजय नट सीआरपीएफ का जवान था और हजारीबाग में तैनात था। 2 दिन पहले ही अपने गांव बलिहार में छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संजय को सोमवार से ही मंदिर परिसर के आसपास देखा गया था। मंगलवार सुबह उसने मां छिन्नमस्तिका की पूजा की और फिर मंदिर की परिक्रमा करने लगा। इसी दौरान उसने खुद के साथ लाए कटारी से मंदिर के मुख्य द्वार के पास अपना गला रेतकर माता की प्रतिमा के आगे खुद की बलि चढ़ा दी। पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने संजय के पॉकेट की तलाशी ली तो कागज मिला। इससे उसकी पहचान हुई और कागज में मिले फोन नंबर से उसके घरवालों को सूचना दी गई। व्यक्ति की पहचान बक्सर बलिहार गांव बिहार निवासी संजय नट 45 वर्ष के रूप में की गई। घटना की जानकारी मिलने से पूरा परिवार सदमे में है। रोहतास जिले के दिनारा से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें मजदूरी मांगने पर दबंगों ने 2 मजदूरों की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसे गर्म सलाखों से दागा भी। मामले में 6 नामजद के अलावा 21 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज की गई है। पैसा मांगेगी रहन तना दुल्हन जब वही पर लगन मारे घर में रॉड आगे धिका के लगन मारे घर में कके। कौन कौन लोग मरले बने? कुर्मी लोग मरले बने। अरे नाम तो बताइए। आसमानी चौधरी, पताली चौधरी, डब्लू चौधरी, अयोध्या चौधरी, दीपक चौधरी। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित मुगल कुआं से रहोई पथ पर राज्य योजना मद से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक 2.5 करोड़ रुपए की लागत से हो रही सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। घटिया निर्माण कार्य होने के बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। जब इस मामले में नगर निगम आयुक्त कौशल कुमार से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से परहेज किया। गौरतलब है कि तिरुपति बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा वर्ष 2014 में सड़क का निर्माण कार्य किया, या जिसकी निर्माण अवधि भी आज 31 जनवरी को समाप्त हो रही है। लेकिन घटिया निर्माण कार्य होने के कारण अभी तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के मिलीभगत के कारण ही यह सड़क पूरी तरह से घटिया निर्माण कराया जा रहा है और सभी लोग मिलकर राशि का बंदर बाट कर रहे हैं। अगर इसकी जांच गंभीरता से कराई गई तो बड़ा घोटाला उजागर किया जा सकता है। सड़क निर्माण कार्य में संवेदक और विभागीय संलिप्तता और मिला जुला करके सारे जगह बंदर बाट हो रही है। और पूरी जो हमारी बिहार सरकार है, बिहार सरकार का एक ही उद्देश्य केवल शराब और जहाँ कहीं भी कोई काम हो रही है उसमें सरकार की कोई ध्यान नहीं है। और पूरे विभाग के द्वारा और संवेदक के द्वारा मिल भगत कर करके रोड खराब जैसे तैसे कंप्रोमाइज करके बनाई जाए। गुणवत्ता तो एकदम का ये तो 85% है जो कि खत्म में है। और जो भी जहाँ भी ब्रेक लगेगा गाड़ी को तो गाड़ी के साथ साथ पीछ साथ में आ जाएगा। तो क्या लग रहा है सड़क बढ़िया से नहीं बना? सड़क बढ़िया से नहीं बना और आगे जाके 1 साल भी नहीं चल पाएगा। बिहार के सासाराम मुफस्सिल थाना के उरेल बिगहा में तिलक समारोह में नाच का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्साहित युवक हवाई फायरिंग कर रहे थे कि एक नर्तकी को गोली लग गई। मृतक नर्तकी बगल के ही गांव अमरा तालाब की रहने वाली थी। पुलिस ने तत्काल शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भेज दिया है। उगर बिगहा और वहीं मैंने गोली लगा तो यहाँ आए लोग और देखने के क्रम में जो है अस्पताल में आने के क्रम में वो मर गई। कोई नर्तकी, हम लोग को सूचना मिली थी कि कोई नर्तकी एक आई है जिनको कि बुलेट शूट किया गया था। उनका उपचार हुआ, ऑपरेशन किया गया, उनका बुलेट निकाला भी गया, लेकिन दुर्भाग्य से वो बच नहीं सकी। समय ये हुआ कि अपना उन लोग जो डेड बॉडी था बॉडी देखना चाहे तो हम लोग का मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का भी हमारा सीनियर थे, हम लोग भी गार्ड भी थे, तो बोले कि देखेंगे। हम लोग दिखाने लगे। दिखाते उन लोग अपने में आपस में गुरमुठी बना करके एक बाइक अचानक हमला बोला, पथराव चालू कर दिया। कल रात्रि में अमरा तालाब मुफस्सिल थाना अंतर्गत कोई डांस का प्रोग्राम था, उसी में गोलीबारी हुई थी जिसमें एक नर्तकी जख्मी हो गई। उसका इलाज नारायण मेडिकल हॉल में कराने के लिए लाया गया था लोग। अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो गई। उसी में वहीं कुछ लोग आए थे 15-20 की संख्या में
और हॉस्पिटल के शीशा उषा को तोड़फोड़ किए हैं। उसमें एक को अरेस्ट किया गया है, 4 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। जशपुर नगर पंचायत पत्थलगांव के कार्यालय में घुसकर महिला अध्यक्ष और वार्ड पार्षद को गाली गलौज करने के मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज जब नगर पंचायत में कामकाज चल रहा था, उसी वक्त दिलीप गुप्ता, राजू तथा 2 अन्य युवक ऑफिस में धावा बोलते हुए हंगामा करने लगे। उन्होंने वार्ड क्रमांक 14 की महिला पार्षद श्रीमती मेघना नायक को, साथ में अध्यक्ष श्रीमती उर्वशी देवी को गाली गलौज करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। युवाओं ने काफी देर तक नगर पंचायत में उत्पात मचाया। हालांकि उस वक्त CMO साहब भी ऑफिस में बैठे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद अध्यक्ष एवं पार्षद नगर पंचायत पहुंची तथा घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि इस तरह से उनके साथ दूसरी घटना हुई है। महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार को पुलिस गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की बात कर रही है। सूचना मिला कि यहाँ पास कुछ लड़के घुस के गाली गलौज कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और मुझे, मेरे ससुर को और हमारे वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। तो इस पे हमने शिकायत भी की है और आवेदन भी दिया है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस चीज़ की मांग की है। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्वशी सिंह और वार्ड क्रमांक 14 पार्षद श्रीमती मेघना नायक द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन दिया गया है कि दिलीप गुप्ता, राजू प्लस 2 अन्य नगर पंचायत में आके जनप्रतिनिधियों को गंदी गाली गलौज किए और अभद्र व्यवहार किए। शिकायत पत्र की जांच की जा रही है। जो तथ्य आएंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र में जातिगत गाली का उल्लेख किया गया है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। आज एक वहशी युवक द्वारा अपने भाई के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई की पत्नी और बहन के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। इस बीच महिला द्वारा शोर मचाए जाने पर घर के बाकी लोगों ने आकर बीच बचाव किया, जिस पर आरोपी राजू चौहान ने कुल्हाड़ी से महिला, उसके पति और बहन पर जानलेवा प्रहार किया। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के गोर्रापारा में आज सुबह एक शर्मसार कर देने वाला मामला देखने को मिला, जहां वहसी दरिंदे राजू चौहान और उसके भाई संजय चौहान के द्वारा अपने ही भाभी और चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। इस पूरी घटना ने जहां पीड़ित के परिवार को झकझोर कर रख दिया है, वहीं समाज को भी सोचने पर विवश कर दिया है। इस घटना का जिक्र करते हुए पीड़ित महिला और उसकी ननद के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जब घर में अकेली थी तो मेरे बगल में रहता है राजू चौहान, वो मौका देख के अकेले घुस गया और मेरे इज्जत लूटने का कोशिश किया। तो मैं आवाज़ की तो मेरे ससुर जी बचाने आए, तो उनको टांगी लेके दौड़ाया तो मेरा पति आवाज़ सुना तो आया, फिर उनको छोड़ा रहे थे तो मेरा पति का हाथ काट दिया। हम लोग का जान का एकदम खतरा है, इसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। हमेशा वो मर्डर करने का धमकी देता। राजू चौहान जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ और उसका बड़ा भाई संजय चौहान मारपीट किए दोनों जन और मेरा भाई को मार दिए। किस में मारे? कुल्हाड़ी से सर। पहले भी जोर जबरदस्ती करता था मेरे साथ और उसकी वजह से मेरा घर से निकलना घुसना सब बंद हो गया है। इस पूरे घटना के बाद पीड़ित परिवार के रूप सिंह चौहान का कहना है कि आरोपी दोनों भाई के द्वारा आज सुबह घर में घुसकर उसकी बहू और बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जिसकी आवाज़ सुनकर रूप सिंह और उसका बेटा बीच बचाव के लिए आए। इसी दौरान संजय चौहान मारपीट करने लगा। राजू चौहान द्वारा कुल्हाड़ी से उनके ऊपर वार किया, जिसमें उसके बेटे का एक हाथ कट गया है। तो मेरा बहुरिया अकेली थी घर में, झाड़ू पोछा कर रही थी, तो मौका देख के राजू आया और राजू चौहान मेरे बगल में ही है उसका घर, और मेरा बहुरिया को बेइज्जती करने का नियत से पकड़ रहा था कि चिल्लाया मेरा बहुरिया। मेरा बेटा गाय बांधने गया था, बाहर में खनिहार है उधर, और मेरा दौड़ के आया मेरा बेटा, मेरे को टांगी से वार करने लगा। तो फिर मेरा बेटा दौड़ के आया तो मेरा बेटा को टांगी से वार कर दिया। मेरा बेटा मैं बच गया, मेरा बेटा को वार कर दिया सर टांगी से। एक मारपीट का केस आया हुआ है, उसका हाथ कटा हुआ था और उसको प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। अभी उसको एक्सरे कराए जा रहे हैं, स्थिति अभी नियंत्रण में है। उसके हाथ साथ पूरे कट गए हैं क्या? हाँ, उसमें हड्डी में चोट लगी है, उसी के लिए एक्सरे कराए जा रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में पत्थलगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही फरार आरोपी दोनों भाई को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। ग्राम केरा कछार से
का वेद प्रकाश सिंह चौहान रिपोर्ट किया है कि राजू चौहान और संजय चौहान इसके घर घुस के जो है इसके बहन को पटक दिए और राजू जो है बीच बचाव करते समय हाथ में रखे टांगी से जो है उसको मारा, जो बाएं हाथ के कलाई ऊपर लगा है। रिपोर्ट पे धारा 452, 324, 323, 506 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इनके बीच पूर्व से विवाद चला आ रहा है और भी कार्रवाई हुई है, प्रतिबंधक कार्रवाई हुई है। तथ्यों की पुष्टि की जाएगी, जांच मौके पे जाके जांच करके जो तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अनामिका सोनी, INI, जसपुर। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड में जनपद सदस्यों ने CEO पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कार्यालय में ताला लगा दिया। इसके बाद गेट के सामने खड़े होकर अध्यक्ष सहित जनपद सदस्यों ने CEO के खिलाफ नारेबाजी की। मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे पामगढ़ SDM को उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर कर CEO के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आज सामान्य सभा का बैठक था। बैठक में CEO से चर्चा करने के बाद ही एजेंडा मैं तैयार किया था। उन्होंने हमें सहमति दिया था कि बैठक में मैं रहूंगा। उसके बाद भी आज के बैठक में अनुपस्थित है वो, जिसके कारण मतलब किसी भी एजेंडा पे चर्चा करना, हम सभी ने असंतुष्ट इसलिए हुए कि जो कर्मचारी वहां बैठे थे जिनको प्रभार दिया गया था वो जानकारी देने से अपने आप को असंतुष्ट व्यक्त किए। हमारा मांग है कि भाई जो भी हम लोग प्रस्ताव पारित करते हैं उसे तुरंत अमल में लाना चाहिए। जनपद अध्यक्ष एवं सदस्यों का यह आरोप है कि जनपद पंचायत CEO के द्वारा सामान्य सभा बैठक की निरंतर अवहेलना की जा रही है। आज बैठक रखा गया था पर उपस्थित नहीं हुई, जिसके कारण उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका ज्ञापन ले लिया गया जनपद सदस्यों का एवं अवगत कराया गया कि भविष्य में ऐसा CEO या अन्य अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाएगा कि सामान्य सभा बैठक में उपस्थित ना हो। हैदराबाद के एयर इंडिया का विमान AI 966 जो कि जद्दाह से शमशाबाद हवाई अड्डे पर उतरा और जांच के दौरान सऊदी अरब के जद्दाह से आए 2 यात्रियों से सोना पकड़ा गया। इस सोने को गैरकानूनी तरीके से भारत लाया जा रहा था। उन दोनों ने पैर के तलवे में सोने की बिस्किट छिपा रखी थी। उनसे 1109 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसमें 4 सोने की बिस्किट और 2 सोने की चूड़ियां बरामद हुई, जिसकी कीमत 32,60,000 बताई जा रही है। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद आज 2 दिवसीय नालंदा दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राज्यपाल रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राज्यपाल रामनाथ कोविंद सपरिवार पहले दिन नालंदा संग्रहालय एवं नालंदा खंडहर, हेमसाग, पावापुरी जल मंदिर का भी बारीकी से अवलोकन किया और यहाँ के इतिहास को जाना। राज्यपाल आए थे बिहार के, उनको मैंने नालंदा विश्वविद्यालय का भव्य दिखाया। वो परिवार के साथ थे, बस अच्छा लगा उनको। वहाँ खंडहर में देखा उन्होंने, विश्वविद्यालय देखा उन्होंने। आज माननीय राज्यपाल महोदय का यहाँ विजिट हुआ है और अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर अच्छे से सभी जगह दिखाया जा रहा है। राज्यपाल नवनालंदा महाविहार के अध्यक्ष होते हैं और ये एक तरीके से नवनालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के गार्जियन के रूप में भी हैं और उन्होंने सर्वप्रथम आज हमारे प्रशासनिक भवन और संकाय भवन में सभी जगह भ्रमण किया। टीचरों से, शिक्षकों से, प्राध्यापकों से और महाविहार का मैं कुछ सचिव हूँ। कुछ सचिव होने के नाते हमसे भी उन्होंने मुलाकात की और यहाँ की सारी गतिविधियों की जानकारी ली। नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर हर जगह अपनी भाषण के दौरान शराबबंदी पर जोर देने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा ही असर सभी जगह देखने को मिल रहा है। ताजा घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा का है, जहां आज लहेरी थाना क्षेत्र बाजार समिति के प्रांगण में उत्पाद विभाग के द्वारा सघन छापेमारी की गई, जिसमें कुल 11 बोतल विदेशी शराब के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर बाजार समिति में लंबे समय से भौजी नाम के होटल की आड़ में आलू गद्दी की दुकान में शराब बेचने का काम किया जा रहा था। इस दौरान आज उत्पाद विभाग ने छापेमारी की तो 11 बोतल शराब के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर दीपनगर थाना क्षेत्र में 36 लीटर देशी शराब, नगर नौसा थाना क्षेत्र में 36 बोतल विदेशी शराब, पावापुरी थाना क्षेत्र के विशुनपुर इलाके में भी 3 कार्टून शराब के साथ पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया गया है।
ये विदेशी शराब यहाँ मतलब जिलाधिकारी महोदय से सूचना प्राप्त हुई थी के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर मतलब ये फौजी लाइन फौजी का होटल है, वहाँ पर शराब मतलब अवैध विदेशी शराब बिक्री की जाती है। तो उन्हीं के निर्देशानुसार यहाँ छापेमारी की गई है। कितना बोतल शराब? लगभग 11 बोतल शराब है। गिरफ्तार भी है। एक महिला और एक पुरुष गिरफ्तार है। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के गोंदवारा गांव के नेशनल हाईवे के सड़क के किनारे बच्चों ने नीलगाय को जख्मी अवस्था में देखा और उसे बेहतर इलाज की खातिर गांव ले आए, जहां ग्रामीणों की मदद से नीलगाय का डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। आज के दौर में जहां इंसान का नहीं होता, वहीं एक जंगली जानवर नीलगाय का बेहतर इलाज कराने की खातिर पूरा गाँव इकट्ठा हुआ। लोग सड़क पे बैठे हुए थे, उधर से नीलगाय हटा, एक बार ही दौड़ा, उधर से बुलेट वाला आया, जाके इसको ठोका, इसका पैर टूट गया। पैर टूटने के बाद ये जाके गड्ढा में जा गिरा। फिर सुबेरे पता नहीं लगा उस समय क्या ठोका नहीं ठोका, नीलगाय है क्या। फिर सुबेरे बच्चा सब पकड़ के लाया, फिर पता लगा कि ये नीलगाय है। गोंदवारा गांव में एक नीलगाय मिला है जो एक्सीडेंट किया हुआ, जिसका पैर का हड्डी निकला हुआ है। हम सरकारी डॉक्टर हैं, हमें खबर मिली तो हम इलाज के लिए यहाँ आए हुए। पिछला पैर का बूंद टूटा हुआ, बहुत हैवी फ्रैक्चर है। बुलेट वाला था, वो आके ठोक दिया, इसमें एक्सीडेंट हो गया, इसका पैर टूट गया। तो गांव के तरफ भागा तो बच्चा सब पकड़ के इसको बांध दिया। सुबह बांध दिया तो थाना खबर क्या गया, तो थाना वाले सब आए थे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की यशोदय जन कल्याण समिति के द्वारा जिले की समस्त नदियों को साफ करने का बीड़ा उठाया है और साथ ही इन तमाम नदियों को कूड़ा करकट और पॉलीथिन मुक्त करने का संकल्प लिया है। समिति के द्वारा काली रात धाम की पवित्र नदी में समिति के समस्त सदस्यों और पदाधिकारियों के द्वारा नदी के घाट और मैदान मंदिर परिसर के चारों ओर सफाई की गई। साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसे साफ रखने के लिए प्रेरित किया। लोगों में जन जागृति का कार्यक्रम भी किया गया स्वच्छता के प्रति, कि आप अपने आसपास स्वच्छता रखें और जहां भी जाए वहां लोगों को स्वच्छता का संदेश दें। हम लोगों ने ये देखा कि आज भी हमारी जो नदियां हैं, प्राकृतिक नदियां हैं, वो कहीं ना कहीं एक कूड़ा कचरा से पटी हुई है। इसलिए हम लोगों ने हमारी समिति के माध्यम से सोचा कि क्यों ना इन नदियों को हम पहले जो प्राकृतिक रूप से स्वच्छ और साफ रहती थी, ऐसे ही स्वच्छ और साफ हम लोग कूड़ादान मुक्त करके, पॉलीथीन मुक्त करके इन लोगों का करें। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।